कंसर्ट इज वाइफ और एनी जो आपको जो है वो अपोजिट, अगर वाइफ ही नहीं है तो फिर नाउजुबिल्ला हम ये किस तरीके से कह सकते हैं दैट ही हैज़ अ सन. और नेक्स्ट नेक्स्ट है द वर्स confirms that Allah is beyond any such need nor does he, and this verse is also confirmed that he don't need any type of these things as a supreme and a universal creator. He is the creator of this whole world, whole universe. He don't need any consort, he does not need any son to help him, okay, have any equal partner or offspring. This was the direct response to the Christian view that Jesus was the son of God, although Jesus never claimed this. Okay, God never claimed this, that he has any child, that he has any wife, that he has any son. He has nothing. He is the only one who can hold, who can control the whole universe. Okay, the Quran emphasizes Allah's oneness and his creative power with respect to all existence, all forms of life, all humanity, as he created all the things and he has full knowledge of all things. This is the important paragraph you have to underline. Hold this one. The Quran emphasizes Allah's oneness and his creative power. कुरान इस बारे में क्लेम करता है, हमें एविडेंस देता है कि अल्लाह अकेला है और उसके पास जितनी भी पावर्स हैं वो उसके अकेले की हैं, उसमें कोई भी उसका शरीक नहीं है. The next one, verses 102 affirms that is Allah is your Lord. There is no God but He. हमारा रब सिर्फ एक है और वो सिर्फ अल्लाह है और उसके अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में उसकी उस जितनी ताकत और पावर रखने वाला. The creator of all the things. Then worship him, इसकी इबादत करें. And reinforces the claim that no other being can match Allah's attributes. Attributes कहते हैं अल्लाह की powers. Hence, none is eligible to be worshipped save him. He is the both Lord and the creator. Lord कहते हैं जो सब जिसकी इबादत करते हैं और creator जिसने चीज़ें create की होती हैं. Thus own deity. Verses 102 concludes with and he has the power to dispose of all affairs. मतलब हमारे जितने भी ज़ाहिर और पोशीदा जितने भी मामलात हैं, नेकी है, गुनाह है, अल्लाह ताला उन सबको एक्सपोज कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, लेकिन उन्होंने हर एक के कामों पे पर्दा रखा हुआ है, अमाल पे पर्दा रखा हुआ है. Compelling humanity to worship none but Allah as He alone is the source of hope and trust for humanity and all of. तो हम लोगों ने अपनी होप, अपनी हेल्प, अपना ट्रस्ट किस पे रखना है? सिर्फ अल्लाह पे, because He is the only one. Resenting Allah's sovereignty and command, His superiority over His creation. Verses 103 says, no vision can grasp Him, but His grasp is all over all vision. He is above all the comprehension yet is acquainted with all the things. मतलब अल्लाह ताला के पास इतनी पावर है कि वो सब चीज़ों का कंट्रोल उनके पास है और कोई भी अल्लाह ताला पे कंट्रोल नहीं रख सकता है. This confirms that humankind cannot claim to understand Allah. हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं और ना हम ऐसा सोच सकते हैं कि अल्लाह कौन है, वो कहाँ से आए हैं, वो क्यों है, उसे मतलब ये चीज़ें आप नहीं सोच सकते हो. ठीक है, ये चीज़ें सोचना भी कुफर कहलाता है. As his attributes are beyond human comprehension. ह्यूमन की थॉट से बहुत दूर हैं ये चीज़ें, ह्यूमन इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं. However, Allah the Creator knows and understands the entire universe. He is able to see everything and nothing is hidden from him. हम लोग को लगता है कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं तो हमें कोई भी नहीं देख रहा, हमारी मम्मा नहीं देख रही, हमारे पापा नहीं देख रहे, लेकिन हमें कौन देख रहा होता है? अल्लाह. तो अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के सामने है. अब हम देखते हैं द इम्पोर्टेंट. अब ये जो सूरा है जिसमें हमने अल्लाह ताला के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने मिलकर पढ़ा है कि दिस इज़ द वननेस ऑफ अल्लाह, ही हैज़ द कंट्रोल ऑन एवरीथिंग, दिस इज ही इज़ आवर लॉर्ड, ही इज़ द क्रिएटर एंड वी हैव टू वर्शिप हिम. ठीक है, इनका कोई बेटा नहीं है, इनके साथ शराकत किसी भी ज़ात की नहीं करनी है, वो कुफर कहलाता है. अब इस सूरा की, इस वर्सेस की हमारी लाइफ में, मुस्लिम्स की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप जस्ट अभी जो मैंने आपको रीड करके बताया तो आप इसकी इंपॉर्टेंस क्या डालोगे मुस्लिम लाइफ में? क्या है, क्या फील करते हो? क्या हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों हैं?
हमारे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो हमारा लॉर्ड है, वो हमारे क्रिएटर हैं, हमने सिर्फ उनकी इबादत करनी है और कुफर नहीं करना और शिरक नहीं करना. Yes. The importance of this Makkah surah in the lives of human is quite significant, as it reinforces the concept of oneness of Allah and focus on Him as the sole creator of this universe and all that there is in it. ये सारी line underline करें. This is the importance passage of this surah in human's life. ठीक है. मैम कहाँ से था? The importance of मक्का यहाँ से लेके there is in it तक. लास्ट थर्ड लाइन पे है ना, थर्ड लाइन पे इट वहां तक. फिनिश. Okay, its main objective is its emphasis on the monotheism and the divine power as opposed to paganism and idolatry, which are powerless. Verses 101 to 103 highlights Allah's powers as creator. यहाँ से start करें. Verses 101 and 103 highlight Allah's powers as a creator, His oneness, His unique attributes, removing any trace of confusion from the hearts and the minds of Muslims, strengthening their faith in His power and authority. तो वर्सेस में ये पार्ट हाईलाइट हुआ हुआ है. क्या हाईलाइट हुआ हुआ है? कि He is the only creator of His power, His oneness अकेला है, His unique attributes, removing any trace of confusion from the hearts and the minds of Muslim. आज तक मुसलमान के दिलो दिमाग में कोई भी confusion का सवाल नहीं है. सब कुछ क्लियर है क्योंकि हमारे पास किताब है, कुरान पाक है, हमने उसको रीड किया हुआ है. We don't have any question. हम अल्लाह से क्यों का सवाल नहीं कर सकते, हमारे पास हर सवाल का जवाब है. Strengthening their faith in His power and authority, making them turn only to Him in times of hardship and difficulty. अल्लाह ताला ने ये श्योर किया हुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जब जब खुशी आएगी, जब जब गम आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, तुमने हमेशा पलट के मेरी तरफ ही आना है. The clarity that it provides to Muslims shows how critical is it to their understanding of Allah's might and knowledge. ये क्लैरिटी जो है वो मुस्लिम को प्रोवाइड करती है कि हाउ क्रिटिकल इट इज़ टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्लाह's माइट एंड नॉलेज. अल्लाह ताला की नॉलेज को समझना जो है वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत बाहर की सोच है, हम कहीं उस सोच तक जा ही नहीं सकते हैं. अल्लाह ताला के पास सारी पावर्स हैं, हर एक चीज़ का नॉलेज है, किसी चीज़ की कमी नहीं है. ठीक है. तो पेज नंबर 4 है. पेज नंबर 4 के बाद है जी आपका पेज नंबर 5. ठीक है, वो 5 ज़रा ढूंढना पड़ेगा. 5 कहाँ है जी? 5 ये 5 11 है. This one is 12. This one is 14 and this one is 13, 17, 15. 5 मेरे ख्याल से सबसे लास्ट पे था. If I'm not sure then I guess 5 18 है. 24, 21, 17, 10. ये रहा 5. ये रहा. ये भी हम रीड कर रहे थे ना सूरह अल-अनम. ये तो 3 आ गया. 5 ये है. यस ये है 5. तो 5 यहाँ तक, ये यहाँ पे फिनिश होता है. The virtues of this surah in Islamic traditions are also immense. Such is its importance of that one tafsir, Quranic interpretation, states that when this surah was being revealed, 70,000 angels were respectfully accompanying it, that every believer who recites it because of its light, his soul, self may be stated
from the spring of monotheism and all those angels will ask forgiveness for that person. Now ये जो चीज़ है ना, ये पैराग्राफ है, this is the importance of reading this surah. इसके ऊपर लिख लें, importance of reading this surah in our daily life. जब ये सूरह नाजिल की जा रही थी ना, तो एटलीस्ट 70,000 एंजल इसके साथ आए थे, वो रिवील किए गए थे. किसके लिए? रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें सारी बातें किसकी हैं? अल्लाह ताला की हैं. तो उसकी रिस्पेक्ट में वो सारे मिलकर इस सूरह को नाजिल करने आए थे. तो यहाँ पे उन्होंने इसका बेनिफिट क्या लिखा है, नेकी क्या लिखी है, जो भी मुस्लिम इसको पढ़ेगा तो जो फरिश्ते हैं वो उसकी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसने ये सूरह पढ़ी है, इसको माफ़ कर दें. ठीक है, अब आपने इसके ऊपर लिख लिया. Yes. अब जो है मैं आपसे PDF शेयर किया हुआ है स्क्रीन पे.